Hello students, national income is completed. Now I'm going to start the chapter money and its function. Actually the chapter is not money only, the chapter is money and banking. This is the next chapter of the macroeconomics of 12th standard. But I'm going to split this chapter into two parts. One, the money and its function, a little bit about the supply, and the second part is I'm going to start off banking. So now today is money and its function. I'm going to start this. Money and its function. Basically in this chapter what should be discussed? Number one is barter system. Did you hear this term, the barter system? The barter system is the exchange of goods. कभी सुना है? ऐसा हुआ करता था. लोग सामान के बदले सामान ही देते थे. किसी के जाकर के किसी के फार्म लैंड में हेल्प करते थे तो दूसरे भी फिर जाके उसके फार्म लैंड में हेल्प करते थे. In economics it is called CC economy, that is called commodity to commodity economy. Students, barter system is also called CC economy, which implies that commodity exchange for commodity. Commodity is exchange for commodity, but there are many drawbacks of the system. Drawbacks like lack of double coincidence of want, lack of store of value, lack of standard of deferred payment, and lack of divisibility. These are the basic drawbacks of the barter system. Now the question is, from where this money came? ये पैसा, ये करेंसी, ये रुपया, ये डॉलर, जो भी बोल लीजिए, आखिर ये कहां से आ गया, कैसे आ गया? बात इसकी है कि मनी इज अ कमोडिटी दैट इज कॉमनली accepted as a medium of exchange. Commonly accepted as a medium of exchange. And measure of value. So the thing is, there is a legal definition of money. There is a legal definition of money, that is, money is anything. Money is anything which has the legal power. Which has the legal power to act as a medium of exchange. To act as a medium of exchange and to discharge debt. D-E-B-T, debt. Legally, money can be of two types. Legally, money can be of two types. Legal tender money and non-legal tender money. Legal tender money and non-legal tender money. Tender money. Legal tender money and non-legal tender money. Here we can use this term fiat money. Legal money, we will use the term fiat money. The money issued by the legal authority of India. क्या है legal authority? Legal authority है RBI. Such as coins, currency, notes. These are the legal tender money. And that legal tender money is also called fiat money, F-I-A-T. It should be very clear. But it is only in the hand of legal authority. भारत में हमारे यहाँ RBI है, Reserve Bank of India. The whole and sole power lies in RBI only. Now the thing is, second is, as I told you about the non-legal tender money, fiduciary money, F-I-D-U, C-I-A-R-Y, fiduciary money. Fiduciary money. One is fiat money and one is fiduciary money. The form of money which is backed by the trust. Trust between what? Trust between two parties. One is payer, P-A-Y-E-R, and one is payee, P-A-Y-E-E. The trust between payer and payee.
That is called non-legal tender money. It is also called fiduciary money. Example, check. Check issue करते कहते हैं बैंक का check. Check issued by one party to another party, or we call it promissory notes. Promissory notes. So I discussed about the legal definition of the money. फिर से बता देती हूँ, लीगल डेफिनेशन का दो पार्ट है, लीगल टेंडर मनी एंड नॉन लीगल टेंडर मनी. नाउ द क्वेश्चन इज फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी. कम टू द फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी. फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी. नाम ही से क्लियर है, फंक्शनल. पैसा कैसे काम करता है. फंक्शनल डेफिनेशन का यही मतलब होगा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में, लेने देने में, जब कुछ हम खरीदते हैं तो हमको पैसे की जरूरत होती है. जब किसी से काम लेते हैं तो उसको पेमेंट देते हैं तो पैसे की जरूरत होती है. तो फंक्शनल डेफिनेशन इज वेरी क्लियर दैट डेली लाइफ में जो पैसे लेना देना करते हैं किसी भी पर्पस के लिए, या तो हम सर्विस लें या तो हम कुछ भी खरीदें, तो उसको हम लोग फंक्शनल डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट समथिंग कि पैसा जो है वो इवोल्यूशन ऑफ मनी एक टॉपिक है. तो इवोल्यूशन ऑफ मनी ये आया कहां से, ये इवोल्यूशन ऑफ मनी है क्या, मतलब पैसे की उत्पत्ति कैसे हुई. तो इसका एक वेरियस फॉर्म्स में थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ. वेरियस फॉर्म्स दैट मनी took during the process of evolution, such as number 1 is the commodity money. All kinds of commodities like कुछ भी बोल लीजिए ना, कुछ भी salt, coal, anything that have been used as a medium of exchange. Directly currency notes नहीं था. Number two is animal money. अजीब लग रहा है सुन के, बट ये सही है. एनिमल मनी मीन्स एनिमल सच एज काउ, गोट, ये सब जो था, दे वर आल्सो यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नंबर 3 मेटालिक मनी. These are the stages. Getting? Number 1 में क्या बताया, कमोडिटी मनी. नंबर 2 में क्या बताया, एनिमल मनी. नंबर 3 में क्या बता रही हूँ, मेटालिक मनी. मेटालिक मनी क्या है, मनी मेड फ्रॉम मेटल्स. Money made from metals like gold, silver, copper, etc. सुने हैं, सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे. आज क्या लोग अपने घर में स्टोर करके रखते हैं, दिवाली में खरीदते हैं चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के खरीदते हैं. Now metallic money are of two types. Number 1 is full-bodied money. Full-bodied money, and number 2 is the token money. What is full-bodied money? Full-bodied money whose value as commodity equals its value as money. दूसरा क्या बताया, दूसरा बताया टोकन मनी. टोकन के मनी क्या है, उस वैल्यू एज मनी एक्सीड इट्स वैल्यू एज कमोडिटी. अब आइए पेपर मनी में. चौथा बता रही हूं पेपर मनी. पहला बताया कमोडिटी मनी, दूसरा बताया एनिमल मनी, तीसरा बताया मेटालिक मनी, अब तीसरा बता रही हूं पेपर मनी. ये तो सभी जानते हैं, मनी मेड ऑफ पेपर इज नोन एज पेपर मनी. इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, या कह सकते हैं बहुत तरह के इसके क्लासिफिकेशंस हैं. रिप्रेजेंटेटिव पेपर backed by the equivalent amount of gold and silver also. Second is the convertible paper money, and third is the inconvertible paper money. उसके बाद आता है पेपर मनी के बाद आता है क्रेडिट मनी. समझ में आ रहा है बच्चा, क्रेडिट मनी. व्हाट इज दिस क्रेडिट मनी? इट रेफर्स टू द बैंक डिपॉजिट विद द बैंक्स, विद विड्रॉवल थ्रू. कैसे पैसा निकालते हैं, चेक के थ्रू निकाल सकते हैं, थ्रू चेक. और उसके बाद अभी के सीन में क्या है, अभी के सीन में है प्लास्टिक मनी. प्लास्टिक मनी हम लोग बोल सकते हैं डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स. डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स सबके पास है आजकल, बहुत कॉमन है यूज करना इसको. बहुत अच्छी बात है that we are using debit and credit cards. This is safe. But these things are issued by bank. These things are issued by banks. Debit and the credit card
कॉमनली इन इकोनॉमिक्स इन दिस चैप्टर एज अ प्लास्टिक मनी बोलते हैं बेटा इसको। तो ये कार्ड्स क्या है, इसमें क्या बहुत अच्छी बात है कि आपको हर समय हार्ड कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। हार्ड कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है। यू कैरी योर डेबिट कार्ड, यू कैरी योर क्रेडिट कार्ड, दैट इज सेफ ऑल्सो एंड बट वेरी मच when you use this you should be very careful. So these are the evolutions of money. I told you about the many stages: commodity money, animal money, metallic money, paper money, plastic money. ये सारा कुछ मैंने आपको about the evolution of money बताया है। समझ में आया? evolution stages. रैंडमली कहीं से पेपर नहीं आ गया, रैंडमली कहीं से ये 100 रुपया 50 रुपया ऐसा नहीं आ गया। बहुत टाइम लगा लोगों को। पहले के जो राजा वो और महाराजा ये सब हुआ करते थे बहुत पहले, तो उस समय ऐसा थोड़ा कि करेंसी थी काम ले लिया, नहीं। बोलते थे राजा के पास हाथी बहुत है, घोड़ा बहुत है, जानवर बहुत है, ये गांव बहुत रिच है, यहाँ ये वहां वो। मीन्स धीरे 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 करके हमारे पास मनी के फॉर्म में, करेंसी के फॉर्म में मनी आया। नाउ द क्वेश्चन इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई डायरेक्टली तो नहीं पढ़ना है सिलेबस में, बट मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ कि इसमें 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1 इज M1। M1 में क्या आएगा बेटा? करेंसी विथ पब्लिक, मतलब C प्लस DD प्लस OD। M1 के बारे में बात कर रही हूँ। C plus DD plus OD, currency with the public, demand deposit and other deposit. Currency with the public, जनता ही के पास पैसा है ना, लोगों के पास पैसा है, देश के लोगों के पास पैसा है। Demand deposit and other deposit. This is the first. Second is M2. After that M3. After that M4. Now M1 is very common that I already discussed about. Currency with the public, demand deposit and other deposit. Now come to the M2. M2 is equal to what? M1. M1 में जो बातें हैं वो ले लेंगे, M1 में जो बातें हैं वो ले लेंगे और साथ में जोड़ देंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट। मतलब क्या? M2 is equal to M1 plus सेविंग बैंक डिपॉजिट। M3 M1 plus टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या है? टाइम डिपॉजिट किसके पास रहता है? टाइम डिपॉजिट रहता है विथ कमर्शियल बैंक। टाइम डिपॉजिट इज विथ कमर्शियल बैंक। और M4 क्या है? M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। ये हमारा जिसमें एक्सक्लूड कर देते हैं, क्या एक्सक्लूड कर देते हैं? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्सक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे 4 प्रोसेस बताया मैंने, दैट इज M1, दैट इज M2, M3 एंड M4। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ अबाउट द हाई पावर्ड मनी। ये क्या होता है हाई पावर्ड मनी? इट कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक which includes cash and बैंक डिपॉजिट्स विथ RBI। इसको हाई पावर्ड मनी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको सिर्फ मनी और के बारे में बताया कि मनी की उत्पत्ति कैसे हुई, मनी क्या है, और फंक्शन में जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो बेसिकली इसका 3 फंक्शन है। वो फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कॉन्टेंजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन तो आप समझ गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट काम है? डेली लाइफ में जो हम लेना देना करते हैं और उसमें जो पैसे यूज करते हैं वो प्राइमरी मनी होता है, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंडरी मनी मीन्स हम लोग उसमें ला सकते हैं, डेफर्ड पेमेंट को बोल सकते हैं कि अभी हम लोग तो जब पैसा नहीं था, करेंसी नहीं था, तो हम लोग फ्यूचर के लिए क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे, बिकॉज वी कांट स्टोर गुड्स ऑल्सो फॉर द फ्यूचर, फॉर द लॉन्ग वी कांट स्टोर। तो मनी के आने से एक फायदा हुआ, क्या हुआ कि डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। समझ में आ रहा है? डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। और मनी की उत्पत्ति से, मनी के आ जाने से फ्यूचर पेमेंट बहुत पॉसिबल हो गया। हर चीज को हम लोग इंस्टॉलमेंट पे किया करते हैं, जिसका हम प्रीमियम जमा करते हैं, तो मनी के रहने से ये सुविधा हमको मिला, है ना। और कॉन्टेंजेंट फंक्शंस
जिससे डेवलपमेंटल फंक्शंस कह सकते हैं इसके बारे में। तो बहुत सारे फंक्शन, जैसे मैंने ड्रॉबैक्स जो बताया, तो वो सारे ड्रॉबैक्स फंक्शंस बन जाएंगे मनी के। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड बताया ना बार्टर सिस्टम में कि दो लोगों का बॉन्ड एट अ टाइम कोइंसाइड करना चाहिए था जब बार्टर सिस्टम था तो, लेकिन मनी में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि मनी में हम लोग जो सामने वाला बेचना चाहेगा तभी आप खरीदेंगे, जी नहीं, आपके पैसे हैं, आप जब खरीदना चाहिए खरीदिए, ये आप पे डिपेंड करता है। सो देयर आर 3 फंक्शंस बता दिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, एंड मनी फ्यूचर पेमेंट को सिक्योर करता है, और मनी जो क्या है वो ओवरऑल लोगों को किसी भी तरह से अगर प्रोटेक्शन देना है तो हम बोलते हैं हमारे पास बैंक बैलेंस है। ऐसा कहाँ बोलते हैं हमारे पास कमोडिटी बैलेंस है, बोलते हैं क्या? इससे फायदा भी नहीं है बोलने से। बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस मींस माय फ्यूचर इज सिक्योर। व्हाई एवरीबॉडी इज सेइंग दिस माय फ्यूचर इज सिक्योर मींस एनफ मनी स्टोर्ड, but money stored means you can use this money anytime during emergency also। जैसा अभी आप देख रहे हैं देश में इस टाइम पे, पैंडेमिक टाइम पे, कि लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, but still we need money to survive, we need money to survive। so deferred payment और फ्यूचर पेमेंट और इंस्टॉलमेंट और बैंक में रखना, इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग हर कोई थोड़ा पैसा जमा करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, so that कि हम इमरजेंसी में उसको यूज कर पाए। तो मनी से हमको ये फायदा है कि जितना भी प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम का, अब वो प्रॉब्लम हम फेस नहीं करते हैं, बिकॉज मनी जो है वो अपने आप में फंक्शन है। आपके पास मनी है तो आप काम कर ही लेंगे। तो कैसा काम कर लेंगे? प्राइमरी फंक्शन आपको सॉल्व हो जाएगा, लेना देना का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। सेकेंडरी फंक्शन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का, मेजर ऑफ वैल्यू का, स्टोरिंग वेल्थ बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। पैसे होने पे तो आप पैसे को स्टोर कर सकते हैं, तो पैसा स्टोर करिए, मींस मनी इज गिविंग दिस फैसिलिटी ऑल्सो। माय डियर स्टूडेंट्स, so I explained it, the money and its function। मनी से रिलेटेड एक टॉपिक है बैंकिंग। बैंकिंग में आपको कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बैंकिंग क्या है, हाउ बैंकिंग वर्क, हाउ बैंकिंग प्रोसीड्योर्स we face, and what are the challenges faced by the banking system, what is the role of the central bank, what is the role of the commercial bank, how money create credit, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।